आज का हमारा विषय वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट के रिपोर्टिंग के ऊपर है। आज यह वीडियो देखकर कम से कम इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकेगा कि हमारे देश में वैक्सीनेशन से जुड़ी समस्याओं को रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है और जो हुए भी है वो इतने कम क्यों हुए हैं। कौन सी संस्था हमारे देश में वैक्सीनेशन से जुड़े साइड इफ़ेक्ट या डेथ को रिपोर्ट करती है, कौन इसका चीफ है, उसका संबंध क्या है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ, यूएस का क्या सिस्टम चलता है यूएस में जो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट या डेथ को रिपोर्ट करती है, और उस डेटा के हिसाब से हमारे यहाँ ये नंबर कितना होना चाहिए जो मीडिया या सरकार रिपोर्ट नहीं कर रही है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं जहाँ यूएस के कोर्ट में एक हियरिंग में 17 साल की से कार्यरत एक नर्स ने सरकार की पोल खोली, यूएस गवर्नमेंट की पोल खोली। आइए समझते हैं कि कितना अंडर रिपोर्टिंग इन साइड इफ़ेक्ट्स का हो रहा है अमेरिका जैसी बड़ी और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो अंदाज़ा लगाया सकता है कि हमारे इंडिया में कितना अंडर रिपोर्टिंग हो रहा होगा उसका। तो आइए पहले इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं। I'm an RN of 17 years, 12 years oncology. In the past 5 years, I've been a float resource nurse to all the different floors in the hospital. I'm extremely concerned with the idea of mandating this vaccine for our children. The reactions we're seeing in the hospital with adults are terrifying and they're being ignored. Just some examples of post-vaccine reactions. तो इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से ये नर्स अपने सरकार की तरफ से ये मतलब इस केस के हियरिंग में ये बताने की कोशिश कर रही है कि कितना अंडरमाइन किया जाता है रिपोर्टिंग को, कितने लोग इसको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। यदि देखा गया कि जो गवर्नमेंट है, जो डेटा जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि जो वेयर्स जो सिस्टम रिपोर्टिंग है, जो एडवर्स रिपोर्टिंग का जो सिस्टम बना के रखा है यूएस ने, वो उसके बारे में तो बहुत लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को, नर्सेज को पता भी नहीं होता है। आइए सुनते हैं इसके बारे में। I've spoken to our chief of medicine, managers, other nurses on why we're not reporting to VAERS, and the most common response is, what is VAERS? It's a topic that's very difficult to address in the hospital setting. I bring up my concerns and repeatedly get dismissed. I've been told, I'm sure someone is investigating this. Well, if we aren't, then who is? Especially since Pfizer ended their study just 6 months after the trial started. I also have been told that VAERS isn't the best indication of vaccine side effects. Well, if that's the case, what are we supposed to be looking at? Over 18,000 deaths, 1 million permanently disabled, and the CDC admits only 1 to 10% of reactions are even being reported. And we know that hospitals are not reporting anything. This is not just where I work. I have many nurse friends in other local hospitals in the southeast Louisiana say the same thing. What I also find is highly disturbing is our treatment protocol. I truly believe our protocol is killing our COVID patients. When I ask other nurses their thoughts, they agree. At this point, doctors will admit our main treatment is not working, but it's all we have. We know that's simply not true. It's just what the CDC will allow us to give. Our hands are tied. Back to our children, though. We have chemotherapies that we know have side effects causing blood cancer such as leukemia in 10 plus years after giving the drug. We know this because we have real long-term trials on these drugs. We are not just seeing severe acute reactions with this vaccine, but we have zero idea what any long-term reactions are. Cancers, autoimmune, infertility, we just don't know. We are potentially sacrificing our children for fear of maybe dying, getting sick of a virus with a 99% survival rate. Our children are not even at risk for this. As of now, we have more children that's died from the COVID vaccine than of COVID itself. And then the health department to come out and say the new variant has all the side effects of the vaccine reactions we're currently seeing. Now, it's maddening. And I don't understand why more people don't see it. And I think they do, but fear of speaking out and even worse. तो देखा आपने कि किस तरह लोगों को डरा धमका कर रखा गया है, जो जॉब जाने के डर से कितने डॉक्टर्स और नर्स इसे रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और यही हालत इंडिया का भी है। आइए मिलते हैं इस इंसान से। गौर से देखिए, इनका नाम एनके अरोड़ा है। ये हमारे AEFI के चीफ है, वही सिस्टम जहां शायद ही कोई पीड़ित व्यक्ति इंडिया में एडवर्स रिएक्शन के बारे में रिपोर्ट करता होगा, जहां शायद 10,000 लोगों में केवल 2-4 लोगों को पता होगा कि AEFI क्या है और वैक्सीन के से जुड़े साइड इफेक्ट्स को कैसे रिपोर्ट करें। यह व्यक्ति उस पोजीशन पर बैठा हुआ है जहां से वो इन सभी चीजों की रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो आइए इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इनका
आखिरकार क्या संबंध है इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ। ये टीचिंग फैकल्टी रह चुके हैं PHFI के, ये मेंबर हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के इम्यूनाइजेशन के ऊपर, ये चेयरपर्सन है ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप ऑफ नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स में, ये चेयरपर्सन है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी QHPV प्रोग्राम बिटवीन इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट्स फाउंडेशन। देखिए यहाँ पे जुड़ता हुआ है इनका तार। WHO के स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेंबर हैं, सेज ग्रुप के भी मेंबर हैं, एडवाइजरी टू बिल गेट्स प्रोजेक्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन, मतलब बिल गेट्स के प्रोजेक्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन को एडवाइज करते हैं ये GACVS के मेंबर हैं, ये नेशनल AEFI का कमेटी में एडवाइजर भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, अभी तो 2008 से लेकर 2017 तक के चेयरपर्सन है, मेंबर ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ICMR में भी बैठे हैं 2007 में, रॉकफेलर में भी इन्होंने फेलोशिप मिला है इनको 1993 में। ये कंट्रीब्यूटर हैं WHO कोविड-19 वैक्सीन सेफ्टी सर्वेलेंस मैनुअल के। इनका जो रिसर्च है वो डायरेक्टली स्पॉन्सर होता है कहाँ, किसके थ्रू, तो गेट्स फाउंडेशन के थ्रू इनके रिसर्च को डायरेक्टली स्पॉन्सर किया जाता है। तो अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर किसका हाथ है, तो बिल गेट्स का। कौन पैसा कमा रहा है, बिल गेट्स कमा रहा है। फंडिंग इनको कहां से आ रहा है, बिल गेट्स की तरफ से आ रहा है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है इनको, रॉकफेलर से भी इन्होंने फेलोशिप की हुई है। रिसेंट इनके एक इंटरव्यू में द वीक के साथ इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वैक्सीन वाज नेवर एक्सपेक्टेड टू स्टॉप एनी वेव। सरप्राइजिंग राइट, क्योंकि वैक्सीन वाज नेवर एक्सपेक्टेड टू स्टॉप एनी वेव, ये खुद इनका डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना था कि वैक्सीन वाज नेवर सपोज टू स्टॉप एनी वेव, ट्रांसमिशन रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन नहीं था। फिर था किसके लिए, ये वैक्सीनेशन था किसके लिए? यदि रेबीज होता है तो रेबीज रोकने के लिए वैक्सीन बनाते हो आप, टेटनस हुआ तो टेटनस के लिए वैक्सीन बनाते हो आप, उसको रोकने के लिए। लेकिन ये फिर किसके लिए था? तो इनका कहना है कि ये केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को रोकने के लिए। वेयर्स की बात करते हैं, वेयर्स डेटा, जो एटलीस्ट वेयर्स में तो डेटा है सारे के सारे, वहां के डेटा के हिसाब से एक न्यूज़पेपर में देखा गया कि 18 से 20 हजार लोगों की डेथ हो चुकी है और करीबन 1.2 मिलियन, करीबन 12 लाख लोगों का ये हुआ है, एडवर्स रिएक्शन हुआ है। लेट्स डू सम एनालिसिस, कुछ एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर। यूएस पॉपुलेशन साइज कितना है, 27 करोड़ का है। इंडियन पॉपुलेशन साइज कितना है, 140 करोड़ का, नियरली 5 टाइम्स ओवर। लेट्स जस्ट से दैट द डेटा इज बीइंग मिसरेड एंड नंबर्स आर एग्जैजरेटेड, से द नंबर्स आर ओनली 10,000। यदि जो डेथ हुआ है वो केवल 10,000 को ही हुआ है, 16, 17, 18 हजार जो बोल रहे हो वो नहीं हुआ, 10,000 ही हुआ है। यदि यूएस का काउंट अब तक, मतलब पिछले 8-10 महीने में जो वैक्सीनेशन हुआ 10,000 ही है, तो इंडिया में कितना होना चाहिए? क्योंकि 5 गुना है इंडिया का पॉपुलेशन, तो कम से कम 50,000 तो होना चाहिए। एंड इफ वी कंसीडर द नंबर्स आर अंडर रिपोर्टेड, अज्यूम 10% ओनली दैट द नंबर्स इन बोथ द कंट्रीज have been reported, then what it should be, it shall be 10 times over, right? 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। Meaning we are looking at currently 2.5 lakh deaths for this entire year only in India. अब सवाल उठता है कि यदि 2.5 लाख लोग मरे तो दिखे क्यों नहीं, मीडिया उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया? मीडिया का जो करप्शन का जो मामला है वो तो अलग है, वो उसको साइड कर लीजिए, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, वैक्सीन के खिलाफ वो लोग कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन 2.5 लाख लोग मरे तो गए कहाँ? वो 2.5 लाख लोग आपको कभी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का जो मोर्टालिटी रेट है वो 7.34 है, हर 1000 व्यक्ति में 7.5 लोग मर जाते हैं। और उसके हिसाब से देखा जाए तो 100 करोड़ में करीबन 7 लाख लोग मर जाते हैं। यदि यह नंबर ऊपर नीचे आधा 1 लाख ऊपर नीचे ऊपर हो भी गया तो भी किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इस साल अभी तो 2021 का कैलकुलेशन बाकी है, 2021-2022 जब इसके साइड इफेक्ट्स हमको दिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये 7.5 का जो रेट है हर 1000 के ऊपर, क्या ये बढ़ा या ये घटा? यदि ये बढ़ रहा है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या चेंज हो गया 2021 में, क्या चेंज हो गया जिसने एक नया इफेक्ट डाला है हमारे फर्टिलिटी और मोर्टालिटी रेट के ऊपर, इंडियन मोर्टालिटी रेट के ऊपर। इसी के साथ मैं ये चर्चा यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया सुनने के लिए और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।